एक ओंकार सतनाम सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਅ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ ਕਾਥੇ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦੁਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਆ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੋ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਮੁਖਸਾ ਲਾਹਣ ਮੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧੇ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਥ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀਸਨ ਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰੋ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੋ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਭਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁਰੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ, ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਗਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ, ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਵਾ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਵਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੀਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ,
ਕੇਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋ, ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਭੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਣ, ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ, ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੂਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ, ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ, ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ, ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਭੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸਿਓ ਕਈਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ, ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ, ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਦ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ, ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ, ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲਖ ਹੋਏ, ਲਖ ਹੋਵੇ ਲਖ ਵੀਸ, ਲਖ ਲਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ, ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਕੀਸ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ, ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ, ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਕੜੀਐ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ,
केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते तू उपदेश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुध नाथ केते, केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रत्न समुंद, केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत न अंत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड़ आनंद, सरमखंड की बाणी रूप, तिथै घाट घड़िया बहुत अनूप, ताकियां गल्लां कथियां न जाहे, जे को कहे पिछै पछताए, तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरा सिधा की सुध, कर्मखंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोध महाबल सूर, तिन में राम रहया भरपूर, तिथै सीतो सीता में ममाहे, ताके रूप न कथने जाहे, ना ओहे मरह न ठागे जाहे, जिनकै राम बसै मन माहे, तिथै भगत वसै के लोह, करੈ आनंदो सच्चा मन सोए, सच खंड वसै निरंकारो, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै त अंत न अंत, तिथै लोह लोह आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਪਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਢਾਲੇ, ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੇ। ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾਹਿ ਹਮਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੇ। ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾਹਿ ਹਮਾਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੇ। ਅਵਰ ਨ ਸੂਝੇ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ, ਅਵਰ ਨ ਸੂਝੇ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ, ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਤੋ ਬਾਰੀ, ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਤੋ ਬਾਰੀ, ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਤੋ ਬਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ
आयो शरण तुम्हारी। मिले सुख नाम हर सोबा, मिले सुख नाम हर सोबा। चिंता नाही हमारी, श्री सतगुर आयो शरण तुम्हारी। सतगुर आयो शरण तुम्हारी। सतगुर आयो शरण तुम्हारी। सतगुर आयो शरण तुम्हारी। वाहिगुरू। किन बिद सागर तरिए, 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 किन बिद सागर तरिए। जीवत आने मरिए, जीवत आने मरिए, जीवत आने मरिए, जीवतिया नैन बनिए, जीवतिया नैन मरिए, जीवतिया नैन मरिए, जीवतिया नैन मरिए, जीवतिया नैन मरिए, जीवतिया नैन मरिए। किन बिद सागर तरिए, 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 किन बिद सागर तरिए।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कीरतपुर साहिब, कीरतपुर साहिब की पहाड़ियों के पास नीचे गांव में मेरे गुरु नानक पातशाह आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह कीरतपुर साहिब की पहाड़ियों के पास। वहाँ पर संगत को नाम से जोड़ रहे हैं। बहुत ही गहरा भाव है इस शब्द का साथ संगत। मेरे कान में आवाज़ कम हो गई है मेरी, देखना क्या है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस शब्द का भाव बड़ा गहरा और बड़ा प्यारा है। मेरे गुरु नानक पातशाह कीरतपुर के पहाड़ियों के नीचे गांव में आके रुके। भाई मर्दाना जी साथ में। यहाँ पर इतिहास में लिखा भाई बालाजी साथ में नहीं है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ा ही गरीब परिवार जो पहाड़ियों पर बकरियां चराता है, बहुत ही गरीब परिवार। उन बकरियों का दूध बेचकर जो मिलता है उसी से गुजारा होता है। किसी वजह से वो भी नीचे आए हुए पहाड़ से उतरकर। उस परिवार में माता पिता और एक छोटी बच्ची है जिसकी उम्र बताई गई 12-13 साल। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी छोटी उम्र, 12-13 साल की बच्ची। देखा कि गुरु नानक पातशाह प्रवचन कर रहे हैं, ये भी बैठ गए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पहली बार कीर्तन सुना गुरु नानक पातशाह का, प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं सामने। पहली बार प्रवचन सुने। और गुरु नानक पातशाह इस शब्द का अर्थ बता रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस वक्त गुरु नानक पातशाह ने पहली बार इस शब्द का उच्चारण किया। मर्दानिया रवाब छेड़ बाणी आई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये शब्द जो आप श्रवण कर रहे हो, जो हम पढ़ रहे हैं, किन विद सागर तरिए जीवतियाँ नह मरिए। इस संसार सागर से मैं कैसे पार पाऊँ, क्योंकि उस पार तू बैठा है निरंकार। इसे पार करूंगा तो तुझे पाऊंगा ना। जीते जी मरे बिना तो मिलता नहीं, और जीते जी मरा जाता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जीवतिया नहीं मरिए। जीते जी मरना किसे कहते हैं? जो अपने मन को मार ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस बात के लिए कबीर जी कहते हैं ना, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, ये उस मरने की बात है, शरीर के मरने की बात नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। तू उस पार बैठा है, मन मरेगा तो तुझ मिलेगा, पर तेरे तक पहुंचू कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ये मन मरता ही नहीं। इस शब्द में पहले सवाल है और आखिर में जवाब है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले बताया गया कि कितना कठिन है तुझे पाना, भव सागर को पार करना है पहले, और भव सागर में क्या क्या रुकावटें हैं, एक एक पॉइंट यहाँ पर दर्ज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जित दर वसै कवन दर कहिए, दरा पितर दर कवन लहे। जिस जगह पर तू रहता है उसका एड्रेस किसी को पता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई विरला है जो उस गुप्त स्थान को ढूंढ सकता है जहाँ तू रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, इस शब्द के अर्थ समझा रहे हैं संगत को।
जिस दर कारण फिरा उदासी सो दर कोई आय कहे। जिस दर को ढूंढने के लिए मैं उदास होकर जंगलों में भटक रहा हूँ, ऋषि मुनि भटकते हैं ना, पाने के लिए भटकते हैं, सदके जाऊँ उनके। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए कोई कुछ भी उनके बारे में कहे, ऋषि मुनि बैठे हैं, तप कर रहे हैं, गुफा में बैठे हैं, उसे पाना चाहते हैं तो कर रहे हैं ना, प्यास तो जागी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी का रास्ता लंबा है, किसी का छोटा है, सबको जो रास्ता है मुबारक, पर व्यर्थ नहीं जाएगी, किसी की भी खालना व्यर्थ नहीं जाती। एक तिल नहीं पन्ने काले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार भी राम कहा हुआ, एक बार भी वाहिगुरु कहा हुआ, चाहे किसी अर्थ कहा हो, व्यर्थ नहीं जाता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किन विद सागर तरिए जीवत या नहीं मरिए। दुख दरवाजा रोह रखवाला आस अंदेशा दो पट जड़े। कितने प्यारे अर्थ हैं। जहाँ पर तू बैठा है बाहर दुख का दरवाजा है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। दुखों को सहना पड़ेगा, दुख दरवाजा है, कितना मुश्किल है तुझे पाना। क्रोध बाहर रखवाला बन के बैठा है दुख के दरवाजे के बाहर। भाव हम क्रोधी हैं, क्रोध आ जाता है, अपने क्रोध के कारण हम उस दरवाजे को भी पार नहीं कर पाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो रोक देता है कि मत जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इच्छा और भरम ये दो ताले भी लगे हुए हैं। हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती, हमारे भरम खत्म नहीं होते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ पहुँचना इतना कठिन है कि दरवाजा है दुखों का, क्रोध पहरेदार है और ताले लगे हैं इच्छा और भरम के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इच्छा हमारी मरती नहीं, एक इच्छा खत्म होती दूसरी पहले जाग रही होती है। यहाँ बैठे बैठे कितनी इच्छा पैदा हो जाती है, ये हो जाए, ऐसे हो जाए, वो हो जाए। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। जब तक ये ताले लगे हैं इच्छा के, ये ताला है, इसे तोड़ना पड़ेगा, इच्छाएं खत्म करनी पड़ेंगी। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। दास हमेशा कहता है ना, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी के बच्चे, ठीक है आए हैं, बच्चे हैं, बच्चों को चाहिए भाई अमृत लौटेंगे तो क्या मिलेगा। स्कूल में बच्चा जाता है, पूछता है कि मैं स्कूल जाऊँगा तो क्या मिलेगा, माँ कहती चॉकलेट देती हूँ। बच्चे हैं, ठीक है, पहली बार अमृत ले आए हैं, क्या मिलेगा, बिजनेस बढ़ जाएगा, रोग ठीक हो जाएगा, ठीक है, मुबारक है, ये गलत नहीं है। पर सारा जीवन मरते दम तक यही बच्चे बने रहेंगे क्या। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। बड़े कब होंगे, बड़े को चॉकलेट देता हूँ ये काम कर दे, हंसेगा वो। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। बड़े कहेगा नहीं मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे पता है असली क्या चीज़ है। ये ज्ञान बस मिल जाए, इच्छाएं पूरी हो, एक ज्ञान तो मिल जाए, इच्छाएं तो खत्म होने वाली नहीं। अब इच्छा से ऊपर उठने का मन तो हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के पास सब कुछ नहीं, मैं देख लिया है मैंने कि एक इच्छा खत्म होती दूसरे पैदा हो जाती है, खत्म ही नहीं होती इच्छाओं की जंजीर। अब तर्स का तू ही मिल, मन में ख्याल तो आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो अपने घर बार छोड़कर निकल जाते हैं, इनके मन में ख्याल तो आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माया जल खाई पानी कर बादिया, सत कया सड़ पुरख रहे। माया जल खाई, जिस घर में वो बैठा है दरवाजा तो है ही, जो देखा सारा समझा। अब आजू बाजू खाई भी है उसके आसपास। वो खाई में क्या है, माया जल खाई पानी कर बादिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का पानी भरा हुआ है उसमें। फिर हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। उस खाई में अब उसे पार करके वहाँ कैसे पहुँचे। ना हमारे कंट्रोल में काम वासना है, न क्रोध, न लोभ, न मोह, अहंकार। अहंकार से तो भरे पड़े हम। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इन सबको पार कैसे करें, गुरु नानक पातशाह सवाल पूछ रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और ज्ञान दे रहे हैं संगत को कि कैसे पार करना है। किंते नामा अंत न पाया तुम सर नहीं अवर हरे। चाहे कितने भी तेरे नाम जप लो, जितने भी तेरे नाम है, राम है, कृष्ण है, वाहिगुरु है, अल्लाह है, पर तेरे सारे नामों में भी तेरे सारे गुण नहीं आ सकते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे गुण बेअंत हैं, तेरे नाम बेअंत हैं, पर तेरे गुण उन नामों से भी आगे हैं। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। कभी किसी ने विचार किया है, कभी भी राउंड फिगर होती है हर चीज़ की, 100 200 ऐसे होता है ना, वही फिट बैठता है। जाप साहब जी की बानी पढ़ते हो तो कितने, आखिर कहाँ ख़त्म होता है, एक छोड़कर। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कितनी गहरी बात की वचन किया करते थे। कहते थे 200 भी कर सकते थे, 200 नहीं किए, छोड़ दिया।
कि मैंने जितने भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इशारा कर दिया कि मैंने जितने भी तेरे उस्ताद की तेरे नाम लिए हैं, पर तेरा जो नाम है असली वो तो परे ही है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। पार नहीं पाया जा सकता, चाहे कितने भी कोई गुण गा ले, नाम रख ले तेरा नाम तू ही जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्य नाम तेरा परा पुरबला, ये गुरु नानक पातशाह ने कहा है कि उसका असली नाम सत्य नाम है, परा पुरबला। जब से सृष्टि बनी है पहली आवाज़ निकली है ओम, जिसे एक ओंकार कहते हैं, तो पहला नाम जो धरा उसका वो सत्य नाम है, सच्चा नाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे, ये पॉइंट बड़ा कीमती है। जब आशा अंदेशा तब ही, जब तक मन में आशाएं हैं तब तक सहम और फिक्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिंपल सी बात है, अगर कुछ है तो घूमने का डर है ना, चोर ना ले जाए। जब है ही नहीं तो लेके क्या जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक हमारी इच्छाएं हैं हम दुखी हैं, इच्छा ही नहीं है तो दुख किस बात का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं, जब आशा अंदेशा तभी क्यों कर एक है। और जब तक ये आशाएं है ना, इच्छा ही है ना, पातशाह कहते हैं तब तक तेरा एक में मन नहीं जुड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक नाम में एकाग्रता, तेरा मन जुड़ेगा ही नहीं, तू भरमों में ही भटकेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आशा भीतर रहे निराशा तो नानक एक मिले, ये पॉइंट है मेन। गुरु नानक पातशाह ने तत्व निकाल दिया यहाँ पर। आशा के बीच में जो निराश हो जाए, रहे संसार में पर संसार से निराश हो जाए अंदर से कि कुछ नहीं रखा इसमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैठा दुकान पे हो, सुत करतार में हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निरंकार में हो, चाहे कोई काम कर रहा हो, अगर सुरत शब्द से जुड़ गई तो गुरु नानक पातशाह कहते हैं आशा भीतर रहे निराशा। जंगलों में भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, केवल सत्संगत में बैठ के जप नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहीं भी बैठ, तेरी सुरत शब्द से जुड़ जाए। आशा भीतर रहे निराशा तो नानक एक मिले। नाव पानी में रहे, पानी नाव में ना रहे। हम कार में बैठे, कार हमारे भीतर न बैठ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका उदाहरण अपने आप को चेक करने का ये है, जब कोई चीज़ मिले तो बहुत खुशी होती है, वो खुशी ना हो, ध्यान से समझना, वो खुशी ना हो, कोई फर्क नहीं पड़े कोई चीज़ मिले तो, और कोई चली जाए तो दुख ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप को चेक कर लो, हमारे साथ ऐसा होता है क्या? नहीं होता तो हम फेल हैं अब तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इस मंजिल पे पहुंचना है, आहिस्ते आहिस्ते होगा। आज बहुत खुश हो रहे, कल थोड़ी खुशी होगी, परसों लगेगा क्या है, जाना ये इसे छोड़कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भीतर से अगर ये आवाज़ आ रही है तो पकड़ नहीं है उस चीज़ की, और पकड़ नहीं है कैसे पता चलेगा? जिस दिन वो चीज़ छिन जाए, समझो गाड़ी ली बहुत बड़ी, एक्सीडेंट हो जाए, लग जाए और सामने वालों को झगड़ा करने लग जाए, मारने लग जाए, समझ लो कि पकड़ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो मन में आता क्या फ़र्क पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को गहराई को पकड़ना है, अपने आप को चेक करने के लिए थर्मामीटर है। कोई चीज़ का नुकसान हो जाए तो हम रोते हैं, बिलखते हैं, क्रोधित होते हैं या मुस्कुरा देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। अगर ऐसा है तो आशा भीतर रहे निराशा तो नानक एक मिला, फिर उसे वो मिल जाएगा। और आखिर में यही कहा है, अगर तू ये कर लेता है, तेरी शब्द सूरत से जोड़ लेता है, तो संसार में रहकर निरंकार से जुड़ जाता है। अमृत वेला संभालने से यही होता है साथ संगत जी। गुरु नानक पातशाह के वचन है। अमृत वेला इसलिए ज़रूरी है कि जो अमृत वेला संभाल के नाम जपता है, आहिस्ते 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 सुरत ऊपर उठने लग जाती है। और एक दिन आता है कि आशा माहे रहे निराशा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर आखिर में क्या है? इन विद सागर तरिए। पहले सवाल है किन विद सागर तरिए, जीवतिया नहीं मरी है। अब कहा है इन विद सागर तरिए, जीवतिया क्यों मरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे कहते हैं जीते जी मरना, कि संसार में रह के इच्छा संसार की ना हो, इच्छा निरंकार की हो जाए। बस सूरत ही बदलनी है और कुछ भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस शब्द के अर्थ गुरु नानक पातशाह कर रहे हैं और वो बच्चे सुन रहे हैं, घर वाले सुन रहे हैं। इतिहास में लिखा है केवल एक बार संगत की गुरु नानक पातशाह की। जाते वक्त सबने माथा टेका, बच्चे ने अपना सर गुरु नानक पातशाह के चरणों को छू दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु नानक पातशाह का वो हाथ जिसके लिए देवी देवता तरसते, वो उस बच्चे के सर पर आ गया।
और उस अवस्था को उस बच्चे ने हासिल कर लिया एक शब्द सुनकर, जिस अवस्था को ऋषि मुनि तरसते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बच्ची वहाँ से चली गई, माता पिता उसे ले गए। अब वो फिर से बकरियाँ चराने जा रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जहाँ बकरियाँ चराती है ना, रोज़ जहाँ बकरियाँ चराने लेके जाती, वहाँ पर एक पीर बैठा है, फ़कीर। कभी कभार वो पीर भी बड़ा कमाई वाला है, कई सालों से बैठा है, बूढ़ा हो गया है, बचपन से लेके बूढ़ापे तक उसे एक शिला पर बैठा है। वो एक पत्थर की शिला है पहाड़ पर, उस पर बैठा रहता है। उसकी कुछ बकरियां हैं, बच्ची आती है, बच्चे की बकरी का दूध नहीं पीता हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी बकरी में से दूध निकलवा के पीता है, वही उसका खाना है, वही उसका भोजन है। 3-4 दिन में एक बार पीता है थोड़ा सा दूध, और 24 घंटे की बंदगी उसकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस पीर फकीर की वो देखता है ये बच्ची आती, कभी कभार वो अपने मैले कपड़े उसे दे देता है कि घर से धो के ले आना। कभी कभी भाव कि वो लड़की उसके आसपास थोड़ा झाड़ू मार देती, थोड़ी सफाई कर देती है बच्ची, और कपड़े कभी दे देता है फकीर, तो वो धो के ले आती है। ये सेवा करती है। अब जब गुरु नानक पातशाह के दर्शन करके आई, उसकी अवस्था ही बदली हुई। वो दिन रात शब्द पढ़ती रहती है। कुछ शब्द उसने कंठ कर लिए लेकर भाई मर्दाना जी से। गुरु नानक की कृपा हो गई, हर वक्त शब्द से जुड़ी रहती, कोई ना कोई शब्द पढ़ती रहती है, कुछ शब्द ले आई याद करके, और सूरत ऐसे जुड़ी कि बकरियाँ चराती रहती है और शब्द गाती रहती है। अब वो दिन आ गया जब ये बकरियाँ लेकर यहाँ पे आई। वो पीर फकीर बैठा है समाधि में, और इसने ये पंक्तियाँ गानी शुरू की। आइए हम भी गा लें। जित दर बसे कवन दर कहिए, दरा पितर दर कवन लहे। जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये छोटी बच्ची 12-13 साल की इस शब्द को गा रही है, ये पंक्तियाँ बोल रही हैं। उस फकीर के कानों में इन पंक्तियों की आवाज़ पड़ी, हैरान हो गया, क्योंकि फकीर था, ज्ञानी था, पंक्तियों के अर्थ उसी वक्त समझ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हैरान हो गया अर्थ समझकर।
अब वो चाहता था आगे की पंक्तियाँ वो गाए, पर वो गाते गाते अचानक रुक गई, उसकी समाधि लग गई। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उस लड़की की पीर इंतज़ार कर रहा है कि वो बोले, पर उसकी समाधि लग, वो चुप करके बैठी है। काफ़ी समय बीता, पीर ने आवाज़ दी, बेटी इधर आओ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने आवाज़ सुनी, हाथ जोड़कर पास में आके खड़ी होगी, जी सेवा बताइए, क्या सेवा करनी। कहने लगे, नहीं मुझे बता, ये तू टपे कौन से पढ़ रहे थे? टपे पंजाबी में टपे कहते हैं। तो वो कहने लगी, टपे नहीं है, ये बाणी है गुरु नानक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहती है, ऐसी बाणी? गुरु नानक कौन? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, हमारे गुरु नानक। वो बेटी कहने लगी कि कहाँ मिले उसे? कहने, हम नीचे गए थे परिवार के साथ, वो वहाँ पे कीर्तन कर रहे थे, तो हमने कीर्तन श्रवण किया। उन्होंने ऐसी कृपा की शब्द के अर्थ बताए कि मेरे अंदर शब्द ही बस गए। मैं दिन रात शब्द ही पढ़ती रहती हूँ। तो कहने लगे, गुरु नानक तुम्हारे गुरु ने कोई तप सिखाया? तप कैसे करते हैं, साधन कैसे करते हैं, साधना कैसे करते हैं, कैसे अभ्यास करते हैं? कहने लगे, नहीं कुछ नहीं सिखाया। तो कहने लगे, फिर बात कैसे बनेगी? कहते, मेरे गुरु नानक ने बस इतना कहा है कि शब्द से लिप जोड़ के रखना, चाहे कोई भी काम करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा भवसागर से पार हो जाओगे, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, अपना काम करो। कोई भी काम करते हो सुरत शब्द से जोड़ के रखो बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उनकी कृपा से सुर शब्द से जुड़ गई है मेरी। आज पीर फकीर ने पहली बार उससे बातें की। इतने सालों में वो सेवा करती थी, फकीर ने उससे कोई बात नहीं की थी। इशारों में कपड़े देता था, वो समझ जाती थी, कपड़े धो के ले आती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फकीर ने दूसरा सवाल पूछा, मुझे एक बात बता, तूने कहती शब्द सुर से जुड़ जाती, उससे क्या होता है? तुझे क्या आनंद प्राप्त होता है? वो कहती है, आनंद? कहती, मुझे ऐसा लगता है डर लगना ही बंद हो गया मुझे। पहले मैं डरती थी, पहाड़ों में अकेली आती थी ना, माता पिता भेजते तो मुझे डर लगता था कि अकेली आ रही हूँ, कोई शेर आ गया, कोई मुझे उठा के ले गया, कई प्रकार के ख्याल आते थे। जब से शब्द से सुरत जुड़ी है मेरी, तब से मुझे डर लगना बंद हो गया है। ऐसा लगता है मेरे गुरु नानक कभी मेरे दाएं हैं, कभी मेरे बाएं हैं, कभी लगता है बादलों में सवार हैं, कभी लगता है हवा में है। मुझे बार बार वही दिखाई देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सुनकर हैरान हो रहा है पीर फकीर। कहता है, और बता, और कैसे महसूस होता है? और तू गाते गाते चुप क्यों कर गई थी? तू गा रहे थे ना? हाँ, तो चुप क्यों कर गई थी? कहने लगे, मैं इसलिए चुप कर गई थी, गुरु नानक पाशा आके गाने लग गए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा तेरे गुरु यहाँ पे आए थे? कह रहे, हाँ कभी कभी आ जाते हैं, वो गाना शुरू करते, फिर मैं उन्हें सुनना शुरू कर देती हूँ, खुद गाना बंद कर देती हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर हैरान हो गया, आंखों में आंसू आ गए कि बचपन से लेके बुढ़ेपा आ गया और मन में ख्याल आते हैं कि मैं ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी। क्योंकि जो मेरा पीर था, जो मेरा गुरु था, उसने कहा था कि बस बैठा रहे भक्ति में, तेरी बात बन जाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी भक्ति, तू बैठा रहे। उसकी वचन मान के एक ही जगह पे बैठा हूँ सारा जन्म, एक ही जन्म, पूरा सारा जन्म एक ही जगह बैठा हूँ कि मेरे गुरु ने वचन दिए थे कि तेरी बात बन जाएगी, मन को नीचे मत जाने देना, तू भक्ति कर रहा है, निरंकार देख रहा है, वो तेरी बात बनाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते इतने पूरा जन्म खत्म हो गया, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरा क्या बनेगा। और जिस अवस्था को उस बच्चे ने हासिल कर लिया, इस अवस्था को पाने के लिए तो मैं तरस रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी मैंने बंदगी की है, इतने मैंने घालना खा लिया, पर अभी तक मेरे अंदर वो प्रेम पैदा नहीं हुआ कि मुझे खुदा हर जगह दिखाई दे। इसे गुरु नानक हर जगह दिखाई दे रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो बच्ची से कहता है कि मुझे फिर से वो शब्द सुना दे, फिर से सुना दे, और पूरा सुना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चे ने कहा, सत बचन जी। और एक जिस पत्थर पे वो बैठा था ना ऊंचा, दूसरे पत्थर पे वो चढ़ के बैठ गई और शब्द गायन करना शुरू किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी घटना है साथ संगत जी, एक शब्द से कैसे जीवन पलटी हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम भी तो सुन रहे हैं, 4 पंक्तियां सुनी उस फकीर ने, रोंगटे खड़े हो गए उसके। और हम भी तो रोज़ सुनते हैं और ये शब्द हम भी तो सुन रहे हैं। क्या कमी है? क्या कमी है? कमी ये कि हम मन मार के आए कि भाई साहब ने कहा 2.5 घंटे आना है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कमी ये कि मन मार के आए 40 दिन का, या चलो 40 दिन अटेंड कर लेते हैं।
कम इस बात की को हमारी कोई इच्छा है ये पूरी हो जाएगी, आएंगे 40 दिन। तो गुरु को पाने की इच्छा ही नहीं है हमारी। वो गुरु के लिए बैठा है कि खुदा मिल जाए। हम इसके लिए नहीं आते हैं कि हमको गुरु नानक मिल जाए। अंदर से पूछो, बाहर से कोई भी बोलेगा, भीतर क्या है? जब हमारी भावना ही वो नहीं है कि वो मिले, तो कैसे वो शब्द वहाँ पे असर करे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। आइए, उस पीर ने उसे कहा है, फ़कीर ने शब्द पढ़ने के लिए, हम भी पढ़ लेते हैं। ये पूरा प्रकरण बड़ा ही विचाराधीन है कि तरना किसे कहते हैं, गुरबानी के अनुसार डूबना किसे कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज हम ये समझेंगे तरना कैसे है, डूबना किसे कहते हैं। हम डूबे हैं कि हम तरे हैं, हम तरेंगे कि नहीं तरेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दुख दरवाजा रो रखवाला, आस अंदेशा दुपट जड़े, माया जल खाई पानी कर बांध्या, सत के आस पुरख रहे। धन गुरु नानक। उस बच्चे ने शब्द पढ़ना शुरू किया। अब शब्द जब आधा पढ़ा फिर चुप कर गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसकी समाधि लगी हुई है फकीर की। कहता चुप क्यों कर गई है, गाना। कहने की इशारा किया उसने, चुप कर जाओ। वो इशारा कर रही पीर को कि चुप कर जाओ, कुछ बोलो मत। पीर हैरान है। थोड़ी देर बाद फिर कहता है चुप क्यों कर गई, गाना। कहने का चुप कर जाओ, मेरे गुरु नानक गा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का कुछ भी कहते रहती, कहाँ है गुरु नानक गा रहे। कहने का वो देखो उस पत्थर पे गुरु नानक पाशा भाई मर्दाना जी बैठे हैं, वो गा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर उठ खड़ा हुआ, पहली बार उठ खड़ा हुआ, देख रहा है पत्थर पे कोई दिखाई नहीं दे रहा, ना कोई सुनाई दे रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो लड़की से कहता है क्यों इस तरह से बातें कर रहे हैं कि गुरु नानक पाशा गा रहे हैं, भाई मर्दाना जी साथ में है, ना सुनाई दे रहे हैं ना दिखाई दे रहे हैं। वो लड़की कहती अब चुप करके बैठ जाइए, मुझे सुनने दीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीर फकीर वो जानते हैं 12-13 साल के बच्चे इस तरह से क्यों कहेंगे। मन भरा है उसका, आंखें भर आई, रोने लग गया। पहली बार फूट फूट कर रोया, नीचे बैठ गया अपनी शिला पर और पुकार की खुदा से, या खुदा मेरी इतनी बुरी किस्मत है, अगर सच में गुरु नानक सामने बैठ के गा रहे हैं, भाई मर्दाना जी साथ में रबाब बजा रहे हैं, इसे दिखाई भी दे रहे हैं, इसे सुनाई भी दे रहे हैं, क्या मैं इससे लायक भी नहीं कि मैं उनके दर्शन कर सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और रोने लगा और उसकी समाधि लग गई, खुदा के लीन हो गया। काफ़ी देर बाद जब समाधि खुली तो सामने कोई खड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सामने भाई मर्दाना जी खड़े हैं।
देख के हैरान हुआ। कहने लगे आप कौन? कहने लगा मैं मर्दाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा का रबाबिया। कहने गुरु नानक कहाँ है? कहने वो देखिए वो बैठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके लिए आप खुदा को फरियाद कर रहे हैं वहीं बैठे, उन्होंने ही भेजा कि बुला ला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक गुरु ना चाहे हम उसे नहीं देख सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक वो आंखें ना देना, देख हर कोई सकता है, दर्शन हर कोई नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखने में और दर्शन करने में फ़र्क होता है। गुरु नानक पाशा को देखा तो बहुतों ने, दर्शन विरलों ने किए। कोई आँखें भूत ना कोई करे बताल, उन्होंने देखा जो गुरु नानक पाशा कह रहे ये तो भूत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो बेताल है। पत्थर मारे लोगों ने और दर्शन विरलों ने किए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। जिसे दर्शन देने होते थे उसे दर्शन देते थे, जिन्हें नहीं देने होते थे वो देखते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब खुद बुलाया, पीर बुड्ढन शाह दौड़ कर गया, गुरु नानक पाशा के सामने जाके खड़ा हो गया और जोर जोर से रोने लगा, माथा टेका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा ने अपना वही मुबारक हाथ, पीर बुड्ढन इसका नाम है इतिहास में पीर बुड्ढन शाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत कमाई वाला पीर हुआ है साथ संगत, पीर बुड्ढन शाह इस फकीर का नाम जो बताया गया है। इसने अपना सर गुरु नानक पाशा के चौने में रख दिया। वही मुबारक हाथ जो उस बच्चे के सर पर आया था आज पीर बुड्ढन शाह के सर पे आ गया। कपाट खुल गए। पहले तो अब गुरु नानक पाशा ने वचन किए, उठ। पहले तो जपता था ना, अब रस ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले बिना प्रेम के तूने भक्ति की है, अब तो प्रेम के साथ आनंद ले, अब बैराग की भक्ति कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तुझे इतना रस आएगा, इतना रस आएगा, तू जिस रस के लिए खोज रहा था वो रस तुझे मिल गया है। अब तू इसका आनंद ले। हम तेरी आयु भी बढ़ा देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी जितनी तुझे आयु चाहिए बढ़ा देते हैं, तू रस ले अब। देखिए, क्योंकि अगर मृत्यु हो जाए तो रस इस शरीर में ही लिया जा सकता है। बार बार ये पॉइंट आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये दात केवल हमारे लिए है, मनुष्य जीवन के लिए। 84 लाख जोनियाँ नहीं रस ले सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके पास तो चॉइस ही नहीं होती। गुरु नानक पाशा कहने लगे रस पिए। उसकी समाधि वहीं लग गई साथ संगत। इतिहास में लिखा कि गुरु नानक पाशा ये सुबह सुबह की घटना थी, जो बकरियाँ लेके आई, शाम हो गई, वो समाधि में लीन है, वहीं सामने बैठा है। गुरु नानक पाशा ने जगह भाई हमें जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो हम चलते हैं। तो वो रो पड़ा, फूट फूट कर रो पड़ा। सारा जीवन मेरा बीत गया आपके दर्शनों के लिए, खुदा के दर्शनों के लिए। अब खुदा मुझे मिल गया, मैं नहीं जाने दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहने लगे नहीं, हमें जाने, हम हुक्मी बंदे हैं। निरंकार के हुक्म से आते हैं, निरंकार के हुक्म से जाते हैं। निरंकार का हुक्म था कि तू बंदगी में बैठा है पूरे जन्म से, अब तुझे फल देना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए उसके गुरु के वचन, तू बैठ जा, तेरी बंदगी व्यर्थ नहीं जाएगी, समय आएगा फल लगेगा, जो जुड़ा रहेगा उसमें रस भरेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो टूट जाते हैं, रस नहीं भरता। जुड़े रहो, इम्तिहान आएंगे, इच्छाएं नहीं पूरी होंगी, बहुत कुछ होगा। जो जुड़ा रह गया दाते ले जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फल लगा है पेड़ में, कभी आंधी आ रही है, कभी तूफान है, जो गिर गया वो खट्टा, वो गया। जो रहा पकड़ में रहा, जो नहीं जिसने छोड़ा पेड़ को, उसमें रस भर गया, उसकी कीमत पड़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और पीर बुड्ढन शाह कहने का जाना जरूरी ही है, तो मैं तो आपको कोई सेवा ही नहीं कर सका। मैं अपनी बकरी का दूध निकाल के लाता हूँ, वो पी के जाओ। यहाँ पे गुरु नानक पाशा ने वचन के, जो इतिहास आगे बनता है जिससे वो करना बाद में कभी लेगा। गुरु नानक पाशा ने कहा अब हमने दूध पीना है इस बेटी के घर में जाके, हम वादा करके आए थे इसके घर में जाके हमने दूध पीना है। तेरे पास दूध आके पियेंगे 6वें जामे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी आयु बढ़ा दी है, हम 6वें जामे में तेरे पास आएंगे। गुरु हरगोबिंद साहिब जी, ये पूरी घटना है। गुरु हरगोबिंद साहिब जी स्पेशली कीरतपुर साहब आए थे पहाड़ियों में इसे दर्शन देने। तब इसकी आयु इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी कि इसके भरवट्टे हैं ना,
आंखों के आगे लटक गए थे कि दिखाई देना बंद हो गया था, ऐसे उठा के देखता था, इतना बुजुर्ग हो गया था। पर गुरु नानक पातशाह आयु बढ़ा के थे, ये रस ले रहा था बैठ के और इंतजार कर रहा था गुरु हरगोबिंद साहब जी के दर्शन करके अपने प्राण त्यागूंगा। हर जय बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना फिर कभी लेगा, क्या हुआ था, फिर कैसे हुआ था। यहाँ पर ये पॉइंट है, गुरु नानक पातशाह ने ज्ञान दे दिया कि तेरी अगर सुरत शब्द से जुड़ी हुई है, अगर तू दुकान पे बैठा है, कहीं भी बैठा है, अगर तेरा ध्यान तेरा नाम में है, सिमरन में तेरी सुरत है, शब्द में तेरी सुरत है, तो तू भवसागर से पार हो जाएगा। मुझे महापुरुषों ने वचन किए थे, महापुरुषों ने मुझे स्पेशली बुला के वचन किए थे कि चाहे तू झाड़ू मार रहा हो, चाहे बाथरूम में नहा रहा हो, चाहे कुछ कर रहा हो, अच्छे से अच्छा काम कर रहा हो, गंदे से गंदा काम कर रहा हो, तेरी सुरत शब्द से जुड़ जाए बस। अब फिर हर जय बोलिए धन गुरु नानक। हर समय तेरा ध्यान वाहिगुरु शब्द में होना चाहिए, या शब्द में ना भी हो तो गुरु नानक में होना चाहिए। फिर हर जय बोलिए धन गुरु नानक। ज़रूरी नहीं है कोई शब्द चले साथ संगत जी, कभी कभी चुप भी शब्द से ज़्यादा काम कर जाती है। फिर हर जय बोलिए धन गुरु नानक। एक होता है मन मार के चुप होना, एक होता है चुप होने का दिल करना, फ़र्क है दोनों में। इस पॉइंट को समझ सकते होंगे कई लोग, क्योंकि संगत में हर तरह के अवस्था वाले लोग होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस सागर को तरना है तो इन विधि सागर तरिए, जीवतिया एवं मरिए। किन विधि सागर तरिए, सागर तरिए, किन विधि सागर तरिए, किन विधि सागर तरिए, प्यार लगा थन दुध। इस शब्द को बड़ी ध्यान से समझना, थोड़ा टाइमिंग का ध्यान देना बेटा, बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। इस शब्द को बड़ी ध्यान से समझना। ये गुरु नानक पातशाह का ही उच्चारण किया हुआ शब्द है। ज्ञान दे रहे हैं कि डूबना किसे कहते हैं। फिर हर जय बोलिए धन गुरु नानक। और तरना किसे कहते हैं। हमारे जीवन पर रोशनी डालिए, हमारा जीवन क्या है। और अगर इस तरह से जीवन व्यतीत करके हम मर जाते हैं, शमशान घाट में हमारी लाश जलाई जाती है, तो हमारा आना ना आना एक बराबर है, निरर्थक चला गया। फिर हर जय बोलिए धन गुरु नानक। पर उसमें से अगर एक काम कर लिया तो कहते तेरा तरना 100% गारंटी है। फिर हर जय बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए। पहले प्यार लगा थन तुद, दूजे माए बाप की सुध, तीजे पया पापी बेव, चौथे प्यार पन्नी खेड। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले प्यार लगा थन दूध, बच्चे का जन्म हुआ, पहले उसे माँ का दूध चाहिए बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बिना वो रोता है। प्यार पहला किससे लगा? पहला प्यार प्रेम माता के दूध से। थोड़ा बड़ा हुआ, अब माता की पिता की गोद अच्छी लगती है, नीचे नहीं चलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सुख का एड्रेस बदल गया, कहाँ पहुँच गया? दूध से गोद पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीजे पहिया पाबी बेव, अब थोड़ा ही बड़ा हुआ, अब अपने भाई अपने बहनों की सोची हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो अच्छे लगते हैं, उनके साथ रहना है। चौथा प्यार ऊपर नहीं खेड, अब खिलौने अच्छे लगते हैं। थोड़ा समय बीता, अब खिलौने चाहिए, खिलौने नहीं मिलेगा तो रुकेगा। अभी गोद नहीं चाहिए माँ की, अब दूध नहीं चाहिए, अब खिलौने चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं। पंजवा खान पीण की तात, अब खाना पीना अच्छा लगता है, थोड़ी सूरत और बड़ी हुई। छठवें काम न पूछा बात, अब और थोड़ा बड़ा हुआ, अब काम वासना जाग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब उसमें खचित हो गया है। ये हमारे बारे में बताएं, हम कैसे हैं, कैसे हमारा जन्म होता है, हम क्या करते हैं। सतवें संज किया करवास, अब शादी की, घर बनाया, कमाना शुरू किया, धन इकट्ठा करना शुरू किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा हो गया, बच्चे बड़े हो गए,
अब जो धन इसने मेहनत से कमाया है वो उसे खर्च कर रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अब क्रोध आ रहा है कि धन व्यर्थ गवा रहे हैं, बिजनेस अच्छे से नहीं संभाल रहे, अब रोज़ झगड़े हो रहे हैं घर में। जो हमारे सब घरों का हाल है वो गुरु नानक पातशाह बता रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ों को अक्सर यही लगता है ना कि बच्चे सही से काम नहीं कर रहे, उनको हमेशा ऐसा ही लगता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और हर घर की कहानी है, कोई नई बात नहीं। गुरु नानक पातशाह अगर वाणी में कह रहे हैं तो ऐसा ही है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ना मैं तौले उबे सा, अब पूरे बाल सफ़ेद हो गए, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। 10वें दद्दा हुआ साहु, अब घर वाले उठा के शमशान घाट ले गए क्योंकि मृत्यु हो गई है, सुहा कर दिया उसे। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। गए से गीत पुकारी था, रिश्तेदार गए साथ में जो संगी थे, वहाँ जाके रो रहे हैं, थोड़ी देर रोए, भूल गए। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। उड्या हंस दसाए रहा, आया गया मुया नाव। आया था तू चला गया, तेरा नाम भी किसी को याद नहीं। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। आया था, किसी लिए आया था तुझे पता ही नहीं। यही सब करके जैसे कि जानवर जन्म लेता है, बच्चे पैदा करता है, मर जाता है, तूने भी वही किया। तुझ में और जानवर में क्या फ़र्क है? बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। और आखिर में कहते गुरु नानक पातशाह, नानक मन मुख अंध प्यार, झूठे प्यार में फंस के जीवन ख़त्म कर लिया, पर बाज गुरु डूबा संसार। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाज गुरु डूबा संसार, जिसने गुरु की शरण प्राप्त नहीं की वो डूब गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिसने गुरु की शरण प्राप्त कर ली वो तर गया। सवाल महापुरुषों से पूछा गया, गुरु की शरण क्या है? कहने की गुरु की शरण है सत्संगत। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े भाग मानो अपने के गुरु ने अपने चरणों में बिठाया, सत्संगत में बिठाया है। यहाँ बैठ गए हैं, गुरु को तारना होगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बस जुड़े रहे, कोई जुड़ा रहे। देखिए सत्संग जी, तर तो पता है, जिसने एक बार धन गुरु नानक कह दिया, जिसने एक बार राम कह दिया ना, तर तो वो भी जाएगा। नाम की इतनी ताकत है। आज थोड़ी डिटेल में आपको बता दूं, तरना किसे कहते हैं। तरने की कई किस्में। जिसने एक बार धन गुरु नानक कह दिया, इनमें से कोई भी नहीं डूबने वाला। चाहे जिसने एक बार सुना होगा पापी हो, वो भी तर जाएगा। ये वाणी कहती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तरना पर क्या है? तरने का भाव होता है जब किसी ने थोड़ा नाम जपा है, एक बार राम कह दिया, वाहिगुरु कह दिया, अल्लाह कह दिया, उसे फिर से एक मौका मिल जाता है मनुष्य देह का। 84 में नहीं भटकना पड़ता, कुत्ते बिल्ली ये सब नहीं भटकना पड़ता। फिर से और तरना इसे कहते हैं। एक मौका मिल जाता है कि अब नाम जप ले भाई, पर नाम जपे बिना छुटकारा नहीं होने वाला। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और किसी जन्म में नास्तिक रह गए, नहीं सत्संगत मिला, नहीं कुछ मिला, तो फिर 84 जुड़। पॉइंट को समझे। बाबा नानक सिंह जी कहते थे तरना तो है, एक लकड़ी का तख्ता है, एक कील ठुकी हुई है उसमें लोहे की, एक कील ठुकी हुई है उसमें सोने की। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। लकड़ी का फट्टा पार हो गया, नदी को पार कर गया, अब वहाँ उतरा तो उसको उठाया किसी ने। अब लोहे की कील का मूल्य तो लोहा ही पड़ेगा, और सोने की कील का मूल्य। तरन नाम जपने वाला भी है, और जिसने एक बार जपा वो भी तरेगा, पर उसका मूल्य सोना पड़ेगा, इसका मूल्य लोहा पड़ेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उस तरने में हमारी चॉइस होगी, किस घर में जाना है, कैसा चाहिए परिवार, कितना धन चाहिए, सब चॉइस हमारी होगी। और सिर्फ ऐसे तरना ऐसे हो गया जहाँ पे उसकी मर्जी, चाहे झोंपड़ी में पैदा कर दे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मौका मिल जाएगा नाम जपने का, पर सुविधाएं नहीं होंगी। कोई ऐसा सुविधा नहीं होगी, पता नहीं सत्संगत में मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कहा इसे आखिरी मौका समझ, इस जन्म को आखिरी मौका समझ के चलेगा तो पार हो जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए मुसलमानों में ना देखिए, हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी किसी को बुराई करने लग जाते हैं कि वो मुसलमान ऐसे सोचते हैं, हिंदू ऐसे सोचते हैं। नहीं, हर चीज़ के पीछे गहरा पहलू होता है। मुसलमानों में एक ही जन्म गिना जाता है कि दूसरा नहीं है। बड़े ध्यान से समझना, हमारे हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि जन्म के बाद जन्म। कृष्ण जी कहते हैं, गुरु नानक पातशाह भी कहते हैं, वाणी भी कहती है कि जन्म के बाद जन्म, पर मुसलमानों में कहते हैं एक ही जन्म है। एक्चुअली में मोहम्मद साहब ये समझाना चाहते थे कि इसे आखिरी मौका ही समझो, ये चॉइस मत हो तुम्हारे पास कि तुम बार बार आओगे और बार बार अभी बच जाओगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने उस पॉइंट को महत्व दिया है। जन्म तो लेने ही पड़ते, पर उन्होंने दिमाग में बात डाल दी, आखिरी मौका है, 5 वक्त की नमाज संभाल लो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरा मौका नहीं मिलेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक।
और पातशाह भी कहते हैं ये आखिरी मौका ही समझ दो। हमें ये नहीं सोचना कि दोबारा मौका मिलेगा। क्यों माना? जन्म लेना और मरने में, मृत्यु में कितने तकलीफ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए तो कहा है जन्म मरण दुहु हूँ मैं नहीं, जन पर उपकार आए। संत जो आते हैं वो गर्भ में नहीं आते। हम जैसे लोग गर्भ में आते हैं, माता के गर्भ में उल्टा लटकते हैं, मलमूत्र हमारे ऊपर से जाता है, हम दुख झेलते हैं। संत नहीं, जन्म मरण दोह में नहीं। संत बाबा नानक सिंह जी समझाते थे, संत की रूह माता के गर्भ में से जब बालक बाहर आ जाता है तब आकर रूह प्रवेश करती है उसमें, वो उसे गर्भ में नहीं जाना पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डूबना क्या है? एत मोह डूबा संसार, गुरुमुख कोई उतरे पार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहते हैं मोह का नाम है डूबना, क्रोध का नाम है डूबना, भक्ति ना करने का नाम है डूबना। भगत बिना बहुत डूबे सियाने, सियाणप का नाम है डूबना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो भक्ति नहीं करते वो डूबने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो अपने सियाणप नहीं छोड़ते गुरु घर में आके भी, वो डूबने की तैयारी कर रहे हैं। कहते बाहर जितनी सियाणप चलानी चला ले, एक्चुअली तो बाहर भी नहीं चलानी चाहिए। भोला भाव गोविंद मिलावे। गुरु को सियानी पसंद नहीं है। कितनी क्लियर का है, भगत बिना बहुत डूबे, ये नहीं कहा मूर्ख, भगत बिना बहुत डूबे सब नहीं, भगत बिना बहुत डूबे सियाने। सियाने भक्ति नहीं कर पाते, सियाने अपनी दलीलें देते हैं, तर्क देते हैं, नाम में क्या रखा है, तो फलाना जपता है उसको देख लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सत्संग में जाता है, देखो शराब भी पीता, क्या फायदा सत्संग में जाने का। ये अपने तर्क है हमारे, इसे सियानप कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के पास संगत इकट्ठी होकर आगे कुछ लोग कि आपका जो सेवादार है वो शराब भी पीता है, जुआ भी खेलता है, हम तो उससे अच्छे सत्संग में भले नहीं आते पर शराब नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे नहीं तुमसे फिर भी अच्छा। वो कहने लगे समझाओ कैसे? तर्क के साथ समझाओ। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे वाणी कहती है, माने एक न चेतस मूड मना हर बिसरत तेरे गुण गल्या। अगर तू उसे भूल गया जिसने तुझे गुण दिए हैं, तेरा एक एक करके गुण भी खत्म हो जाएंगे। तुम सत्संग में नहीं आते, उसे भूल रहे हो, एक दिन भूल जाओगे। अभी याद ही नहीं, आते नहीं हो मतलब सत्संग में नहीं आते तो तुम्हें गुरु का नाम याद भी नहीं होगा। और नहीं आते तुम्हें गुण है, पहले का जपा हुआ है इसलिए तुम्हें गुण है, पर अगर नहीं जपोगे आगे एक एक करके गुण खत्म हो जाएंगे। और ये जो शराब पी रहा है, ये जो जुआ खेल रहा है, रोज सत्संग में आता है, रोज सुनता है गलत बात है शराब पीने, रोज सुनता है जुआ नहीं खेलना चाहिए, पता नहीं शब्द की कौन से दिन चोट लग जाए इसका जीवन बदल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए जो सत्संग कर रहा है वो प्लस ही प्लस में है, नुकसान में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप में से कितने बैठे हैं सबको पता है, सुनते रोज है, पर पता नहीं कौन से दिन चोट कर गई, शराब छूट गई, पता नहीं कौन से दिन वो बानी की चोट कर गई। बानी रोज सुनते हैं कि मांस नहीं खाने पर आज चोट कर गई, छूट गया, पता नहीं होता कब किस पे कभी नजर हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कब किस पे तरस आ जाए, उसकी हजूरी में बैठे हैं, वो एक एक को अंदर से देख रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं अगर तू अपने सियानप छोड़ दे तो तेरी अरदास भी कबूल होगी। कल हमने अरदास की बात की थी ना, छोड़ सियानप सगल मन तन अर्प तार, अपना मन तन आगे रख के अरदास कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु क्यों नहीं सुनेगा? अपनी सियानप छोड़ के। हम अपनी सियानप नहीं छोड़ते। सियानप किसे कहते हैं? गुरु को अरदास कर रहे हैं और साथ में बैकअप प्लान भी है, नहीं अरदास पूरी होने वाली फिर ये करेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु, क्योंकि भरोसा ही नहीं है, भरोसा ही नहीं कि अरदास गुरु पूरी कर देगा, तो अपनी प्लानिंग साथ में रखते हैं, ये बैकअप प्लान वो बैकअप प्लान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो कोई प्लान बैकअप नहीं रखता काम हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज पे सूली खान हमला करने आ रहा है, सेना लेकर, संगत इकट्ठी हो गई, घबरा गई, कहने की पाचा कुछ करो। पहला मता दिया, प्रथमे मता दिया पत्री चलाओ, द्वितीय मता दो मानक पहुँचाओ, तृतीय मता कुछ करो उपाया। कहते हैं पहले कहा कोई चिट्ठी भेजते हैं किसी को लेके, भाई क्यों आ रहे हैं हम पे हमला करने। दूसरा चलो 4 आदमी भेज देते हैं, वो जाके बात कर लेंगे। तृतीय मता आप कुछ उपाय करो। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं मैं सब कुछ छोड़ प्रभ तू ही त्याया, मैं तो मेरी तो एक ही ओटा है आसरा गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं कोई उपाय नहीं करूँगा, सिर्फ गुरु नानक के आगे अरदास करूँगा, मैं रक्षा कर। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने रक्षा की शब्द पढ़ा, सुली ते नारायण राख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास की, शब्द उच्चारण किया और वही हुआ। रास्ते में आ रहे सूर्य खान फौज के साथ, बट्टा
चल रहा है, जहाँ पे ईंटें पकती हैं, घोड़ा भट्टे में चला गया। फिर जे बोलिए धन गुरु नानक, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और घोड़े समेत ही भट्टी में जल के ख़त्म हो गया सूली खान। फिर जे बोलिए धन गुरु नानक। ये हमें ज्ञान देने के लिए कि जब तू सारे अपनी सियाणप छोड़कर गुरु के आगे झुकता है, गुरु को तेरा काम करना पड़ता है। फिर जे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई दो पंक्तियाँ पढ़ लें। किन बिंद सागर तरिए, 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 किन बिंद सागर तरिए। ए सागर सोई तरे जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए, जो हर गुण गाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने सिंपली समझाया है। पिछले साल 40 में शब्द लिया था, ये सागर सोई तरह जो प्रभु के गुण गाएगा वो तर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर बाबा नंद सिंह जी बड़ा ही विशेष पहलू समझाया करते थे। कहते थे तरना बड़ा मुश्किल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक काम कर ले, गुरु को अपनी बाह पकड़ा दे, बस सोचना छोड़ दे कैसे तरेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इस बात को समझाने के लिए बाबा नंद सिंह जी बड़ी प्यारी घटना सुनाया करते थे, जो संत सुजान सिंह जी भी अक्सर सुनाया करते थे। और कितना ज्ञान है इस घटना में, ध्यान से श्रवण करना है। मेला लगा। पुराने ज़माने में टीवी वगैरह तो होते नहीं थे, एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल होते नहीं थे। मेला लगता था और मेले का चाव बहुत होता था फिर, क्योंकि मेला लगा है, साल में एक बार लगता था। कि हर जगह बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पे शिवरात्रि का मेला लगता है ना, महाशिवरात्रि का। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। बचपन में मुझे बहुत शौक था, मैं जाया करता था। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बच्चा पिता से कहता है कि मुझे मेले में लेके चलो, मेला लगा है। पिता समझाता है, बेटा ध्यान से सुनो, बड़ी प्यारी घटना है। बाबा नंद सिंह जी सुनाते हैं। बच्चा जिद कर रहा है कि पिताजी मुझे मेले में लेके चलो। पिताजी कहते हैं, बेटा मेले में बहुत भीड़ है, मत नहीं चलते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेटा जिद करता है, पिता मान जाता है, लेके चलने लगता है, पर समझाता है, बेटा एक बात याद रखना, एक काम कर लेना, मेरी उंगली पकड़ ले, छोड़ना मत, कुछ भी हो जाए मेरी उंगली मत छोड़ना। बेटा कहता है, ठीक है मैं उंगली नहीं छोड़ूंगा। पकड़ लेता है उंगली, मेले में घूमता है, जिस चीज़ की तरफ इशारा करता है पिता वो खेलने के लिए खिलाता है, जिस तरफ खाने का इशारा करता है पिता खिला देता है। बहुत खुश है, बहुत खुश है। अचानक भीड़ का धक्का लगा, भीड़ का धक्का लगा, उंगली छूट गई। पिता बेटे को ढूंढ रहे, बेटा पिता को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है। मेला वही है जो पहले था, पर मेला अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? पिता की उंगली छूट गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रो रहा है, बिलख रहा है। लोग देख के कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है कुछ खा ले, कुछ ले दूं, पर ना खेलने का मन कर रहा है ना खाने का, दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। वहां पर से कोई गुजरा जो पिता को जानता था, पहचान वाला था। उसने देखा ये तो पहचान वाले का बेटा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दौड़ कर गए, गोदी में उठा लिया और कहने के चल मैं तुझे तेरे पिता से मिला देता हूँ। प्यार दिया और ले गए और जाकर पिता से मिला दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चा दौड़ के गया, पिता ने गले से लगा लिया और पिता उस आदमी से कहता है, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, तुमने मेरे बिछड़े हुए बच्चे को मुझसे मिला दिया, ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा मैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ इसके बदले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर बाबा नंद सिंह जी कितना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। कहने लगे मेला है ये दुनिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेला है ये दुनिया, पिता है गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
गुरु नानक बार बार समझा के थक गए, नितिन मत छोड़, मेरी उंगली मत छोड़। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उंगली मत छोड़ना, तू तमाशे देख, आनंद ले दुनिया के मेले का, बस अमृत वेला संभाल ले, नितिन मत छोड़, मेरी उंगली मत छोड़। समझा के थक गए कि नहीं थक गए? पर फिर हम उंगली छोड़ देते, धक्का लगा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, उंगली छूटी। अब सारे पदार्थ हैं इसी दुनिया के मेले में, पर दुखी हैं, अरबपति भी दुखी हैं, हर कोई दुखी है क्योंकि उंगली छूट चुकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उंगली है नित्यनेम, नित्यनेम जिसका छूट गया सारे सुख होते हुए भी दुखी है, और जिसके पास नित्यनेम है सारे सुख उसके पास है, वही मेला है। अब वहां से गुजरा कौन? वो आदमी जो गुजरा जिसकी पहचान थी वो थे संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते वो है संत, वो देखते हैं कि ये बिछड़े हुए हैं, तरस आता है, तरस आता है, उन्हें ज्ञान देते हैं, उसे प्यार देते हैं, गोदी में बिठाते हैं और जाके प्रभु से मिलाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान देते हैं भाई अमृत ले उठ, ज्ञान देते हैं भाई नाम जप ले, और उंगली पकड़ा देते हैं फिर से गुरु नानक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वही मेला है, फिर से अच्छा लगने लग जाता है, फिर से सारे सुख हासिल हो जाते हैं, दुख खत्म हो जाती है जो गुरु नानक की उंगली पकड़ लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उंगली छूटी दुख है, उंगली है नित्यनेम, तू गुरु नानक की बाह मत छोड़, गुरु नानक तुझे नहीं छोड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, नित्यनेम दरगाही टिकट है, जमदूत हाथ नहीं लगाएंगे, टिकट पास में हो तो टीसी का डर नहीं होता, ट्रेन में बैठे हो तो टिकट है मेरे पास, आदमी खुशी से बोलता है ये लो देखो टिकट, और टिकट नहीं है तो डर डर के बैठा रहता है, अभी पकड़े गए अभी पकड़े गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं अगर नित्यनेम का टिकट नहीं होगा तो जमदूतों से डर डर के कहाँ छिपेगा, और अगर टिकट होगा जमदूत को ऐसे दिखाएगा भाग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जमदूत आएंगे ही नहीं, पता है तेरे पास टिकट है, देवता आएंगे। किसी ने सवाल किया मौत तो आनी ही आनी है, किसी ने मुझे सेवादार ने बताया, किसी ने सवाल किया कि भाई साहब आप बोलते हो कि उसके बाद जमदूत नहीं आएंगे, मरने के बाद जमदूत तो आते हैं। नहीं भाई, जो नाम जपते हैं उन्हें लेने जमदूत नहीं, उन्हें लेने देवता आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत फर्क है मौत का। क्या जाना कि मरेंगे, कैसे मरना होए, जे कर साहिब मनो ना विसरेता, सहला मरना होए। कैसे मरेंगे, मरना तो सबने है। कृष्ण जी कहते हैं ना श्रीमद् भगवद गीता में कि मरना तो सबने है, पर इम्पोर्टेंट ये है कि कैसे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। किसी के भले के लिए मरा कि अपने लिए मरा, जानवर के जैसे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। मरना तो सबने है। फौजी मर रहा है, हमारे लिए मर रहा है ना, तो हमारी नज़रों में वो शहीद है, बहुत उत्तम दर्द है। शहीद को दरगाह में स्थान मिलता है। बाबा नंद सिंह जी के वचन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दो अपनी देश कौम के लिए रक्षा करते हुए मर जाता है, कोई छोटी बात नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मौत तो आनी सबको है, पर कैसे। जे कर साहिब मनो ना विसरे। अगर तू प्रभु को नहीं भूलेगा तेरी मृत्यु बड़ी आसान मृत्यु होगी तेरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखिए मरते तो एक्सीडेंट में भी लोग हैं, क्या पता उस वक्त उसकी क्या स्थिति कैसे है। अगर एक्सीडेंट में कोई मर रहा है पर उसका ध्यान वाहिगुरु में है तो उसकी मौत भी सरल ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी कहते थे ना, कोई जंगल में मर रहा हो जिसे कोई ना जानता हो, कुत्ते उसकी लाश खा रहे हो, पर अगर वो नाम जपते रहे, नाम जपता था, नाम जपते जपते मरा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता शरीर क्या हो रहा है। शरीर का हम बंधन में बंधे होते हैं, आत्मा का शरीर से कोई लेना देना नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अत का पापी हो उसको चंदन की लकड़ियों में जला दो, आप गंगा में जाके बहा दो, उसको नरक ही मिलेंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिसने किसी का रेप किया हो, जिसने किसी का कत्ल किया हो, वो क्या स्वर्ग में जाएगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन कहते थे, गुरु को अरदास किया करो कि पातशाह देखो उस बच्चे ने, पिता ने क्या कहा, मेरी उंगली पकड़ ले। कह रहे आप बच्चे बन के पिता से ये कहो कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं उंगली पकड़ूंगा मुझसे छूट जाएगी, आप मेरी उंगली पकड़ लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि पिता ने अगर उंगली पकड़ ली पिता नहीं छोड़ेगा। और एक बार गुरु नानक जिसकी उंगली पकड़ ले साथ संगत जी, एक बार इस पॉइंट को बड़ी ध्यान से समझना, कोई एक बार जुड़ जाए ना अमृत वेले से, समझो बाद में छूट गया, समझो 40 दिन किया और बाद में नहीं कर पाया, बुरी संगत ने पड़ गया, नहीं अपने मंजिल तक पहुंच पाया, पर अंत समय में फिर गुरु संभाल लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ऐतिहासिक घटनाएं बहुत सारी। अजामल को गुरु ने कहा
अजमल को गुरु ने क्या कहा, उस गली में से मत निकलना। दास पूरी घटना नहीं ले रहा, बहुत लंबी है, फिर किसी दिन लेगा। वो वेश्वा का कोठा है वहाँ पे। पर अजमल को अपने ज्ञान का अहंकार था, बहुत ज्ञानी था, बहुत नितनेमी था, पर अपने ज्ञान का अहंकार हो गया। गुरु उसे कह रहा है कि उस गली में से मत गुजरना, उस बाजार में से उस तरफ से होके जाना। उसने मन में सोचा मुझ पे कहाँ असर होगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। हम सोचते हैं ना शराबियों के साथ बैठेंगे असर नहीं होगा। गुरु ने कहा उधर से मत जाना, ये उधर से ही गया कि मुझ पे असर नहीं होगा वेश्वा की खूबसूरती का। पर साथ संगत जी गया उस गली में, उस गली से सारा जीवन बाहर नहीं निकल पाया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। पापों में सारी जीवन गर्क हो गया। पर जब अंत समय आया गुरु फिर आए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। बेटे का नाम नारायण रख दिया, और जब मौत आई तो डर के जमदूतों को देख के बेटे को पुकार रहा है नारायण 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 नारायण। नारायण को नाज रखनी पड़ी कि नाम तो मेरा ले रहा है ना। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। जमदूत चले गए, देवता आ गए। अंत समय में गुरु ने आके बचा लिया। बाबा नंद सिंह जी कहते थे गुरु की यही वड्याई है, सिख गुरु को छोड़ देता है, गुरु सिख को नहीं छोड़ता। एक बार कोई बाँह पकड़ा दे अपनी। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। भाई जोगे को क्या कहा था गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, तेरा नाम क्या है? कहने का मेरा नाम जोगा है। कहने का किसके जोगा? पंजाबी अक्षर है जोगा। तो कहने लगा जी आपके जोगा। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कह दिया अगर तू मेरे जोगा तो गुरु गोबिंद सिंह जी तेरे जोगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं तेरे जोगा। वो भूल गया, इम्तिहान खड़ा हुआ अहंकार में ही, काम वासना जागी। बड़ी लंबी घटना है। वेश्वा के कोठे पे जा रहा है रात को, और पहरेदार धक्के दे के भगा रहे कि नहीं जाना है। गुरु का सिख होके आ रहा है, अमृत ले तेरा नाम जपने का समय, कहाँ जा रहा है इस वक्त? वो फिर से गया पहरेदार से झगड़ा करने, तुझे क्या लेने देना? पहरेदार कहने लगा, ऊंचा लंबा था, डंडा हाथ में था कि डंडा मारूंगा। गुरु के सिख के वेश में आया तू, और वेशा पे कोठे पे जा रहे तो गुरु को कलंक लगाएगा। 2-3 बार भेजा, पहरेदार ने अंदर जाने नहीं दिया, मन मार के वापस चला गया। और वो पहरेदार कौन था? जब सुबह गया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पास, तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दिखावे के लिए ऐसे सो रहे हैं गद्दी पर, तख्त पर बैठे। कहने के पाछा कि नींद नहीं पूरी हुई। कहने के सारी रात तो तूने जगा के रखा है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के मैंने जगाया? कहने लगा बार बार वेश्वा के कोठे पे आ रहा था। कौन था? मैं ही तो खड़ा था वहाँ पे पहरे पे। तूने कह दिया कि मैं तेरे जोगा, तो मैंने कह दिया तेरे जोगा, मुझे लाश तो रखनी पड़ेगी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वेश्वा के कोठे के बाहर पहरेदार बन के खड़े हैं अपने सिख को बचाने के लिए, क्योंकि उसने एक बार बाँह पकड़ा दी अपनी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार बाँह पकड़ा दो गुरु को, पाछा बख्श ले, मेरी बाँह पकड़ ले। अगर उसने बाँह पकड़ ली साथ संगत जी, इसलिए तो हम गाते भी है ना कविता, गुरु नानक मेरी बाँह न छड़ी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए 2 पंक्तियाँ पढ़ लें। किन बिद सागर तरिए, किन बिद सागर तरिए, किन बिद सागर तरिए, किन बिद सागर तरिए, किन बिद सागर तरिए। भाई मर्दाना जी नाराज़ हो गए गुरु नानक पातशाह से। 10 शॉर्ट में बीच में पॉइंट्स ले रहा है। नाराज़ हो गए गुरु नानक पातशाह से। कई दिन भूखे रहते थे साथ संगत। इतिहास में लिखा है कि 4 या 7 दिन से पहले उन्होंने भोजन नहीं मांगा कभी। 4-4, 7-7 दिन। हम एक ही दिन व्रत रखते हैं कोई, उसमें 50 चीज़ें खा लेते हैं व्रत वाली, और बोलते व्रत रखा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। और भाई मर्दाना जी की साखियाँ सुनाते तो कई लोग हंस के सुनाते, मर्दाना जी को भूख लग गई। इतिहास में लिखा है जिसने गुरु नानक के एक बार दर्शन कर लिया, हमें भाई मर्दाना जी कहना पड़ता है क्योंकि लिखा है ये तो ब्रह्म ज्ञानी भाई मर्दाना जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत मर्दाना एक बार जिसके साथ हाथ छू गया वो संत बन गया। ये तो सारा जीवन, सबसे ज़्यादा समय गुरु नानक पातशाह ने किसी के साथ बिताया है, अपने घर वालों अपने बच्चों से भी ज़्यादा, तो वो है भाई मर्दाना जी के साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि कीर्तन उनका भोजन था, और भाई मर्दाना जी कीर्तन सुनाते थे, रबाब बजाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाराज़ हो गए भाई मर्दाना जी, बहुत दिनों से भूख लगी थी। लंबी कहानी है, बीच में शॉर्ट में लेके बता रहे हैं। नाराज़ होकर चले गए। गुरु नानक पातशाह कहने की घना जंगल है भाई, मत जा, आगे बहुत भयानक चीज़ें हैं, मत जा। और भाई मर्दाना जी कहने की मुझे कोई फिक्र नहीं है। नाराज़ हो गए, मैं जा रहा हूँ। चले गए, आगे गए,
तो आगे मिला कौड़ा राक्षस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो लोगों को तल कर खाता है, तेल का कढ़ाई गर्म करके रखा है, भाई मर्दाना जी को उठा लिया, तेल के कढ़ाई में डालने लगा है। गुरु नानक पाशा समाधि मिली, ने कह रही भाई बालाजी से कहते बालिया, वो राक्षस ने भाई मर्दाने को पकड़ लिया है, चल जाना पड़ेगा उसे बचाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई बालाजी कहते हैं मैंने कहा कि छोड़ो, हमेशा नाराज होकर चला जाता है, थोड़ा उसको सबक भी मिले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु नानक पाशा ने वचन किए, हमने उसकी बाँह पकड़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो हमें छोड़ के जा सकता है, हम नहीं छोड़ के जा सकते उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये है गुरु नानक। बाँह जिना दी पकड़ी है, आती है ना पंक्तियाँ, एक बार जिसकी बाँह पकड़ ली फिर नहीं छोड़ते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और गुरु नानक पाशा ने फिर बचाए। दूसरी घटना है, लंबी घटना है। वचन यहाँ पर ये है महापुरुषों के कि एक बार जिसने श्रद्धा से गुरु नानक को अपनी बाँह पकड़ा दी, फिर वो उसे निभाता है। बाबा आनंद सिंह जैसे सेवादार नाराज होकर चले गए। बाबा नाराज होकर नहीं चले गए, बाबा आनंद सिंह जी ने बहुत ताड़ना देके, गालियाँ देके, धक्के मरवा के निकाला उन्हें, क्योंकि कोई बड़ी गलती कर दी थी उन्होंने। और बाबा आनंद सिंह जी बहुत सख्त थे, बहुत सख्त। कहा ऐसे नहीं छोड़ना। और वहाँ नानकसर के बाहर पटरियाँ हैं, रेलवे लाइन, उसके दो वहाँ तक छोड़ के आना, पर ऐसे नहीं, धक्के मार मार के, चलने मत देना, धक्के मारते जाना, धक्के मार मार के वहाँ तक छोड़ के आना। कम से कम तकरीबन 1 किलोमीटर साथ से। सेवादार भी वचन मार के धक्के मार रहे हैं, वो धक्के खा रहे हैं और गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, गलती हो जाती है। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। दोनों को धक्के मार के जब लाइन, रात का टाइम, अंधेरे का समय, बाहर छोड़ रहे नानक सर। अब वो दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। एक कहता है कि गलती की यहाँ पे सेवा करके, आने नहीं चाहिए था यहाँ पे, सारा जीवन इधर लगा दिया और ये ऐसे कर रहे हैं, धक्के मरवाए हमें, ऐसे किया वो किया। छोटी गलती हो गई तो हो गई। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। माफ़ी भी तो मांगी हमने, पर माफ़ भी नहीं किया। बहुत बाबा आनंद सिंह जी के लिए ना थोड़ा क्रोध में कुछ बोलने लगा वो, तो दूसरा क्या कहता है, छोड़ना यार, पुत्र का पुत्र हो जाते हैं, मापे को मापे नहीं होते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम बच्चे, हमसे गलती हो गई और हम उल्टा सीधा बोल भी रहे हैं, पर माता पिता को अपने बच्चों की लाज होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिता बेटा हो सकता है कि पिता को ना पूछे, कभी ऐसा समय आ सकता है, पर ऐसा कभी नहीं होता कि पिता बेटे को ना पूछे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मापे को वो हमारे पिता संभाले, ये बातें वो वहाँ कर रहे हैं। बाबा आनंद सिंह जी एक सेवक भेजा कि जो उन्हें बुला के लाओ। वो जब बुलाने गए तो वो कहने कि हम नहीं आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धक्के मार के निकाला, आप क्यों बुलाया? कहने के देखो मुझे हुक्म है लेके आने का, आपकी मर्जी, आने नहीं आओ। तो कहने के ठीक है चलते हैं। आ गए तो बाबा आनंद सिंह जी को आते कहते आप क्यों बुलाए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी कहने के गाली निकाल के कहा, हरामजादे। बाबा आनंद सिंह जी ने हमें पिता बनाया तब बुलाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बातें वहाँ सुन रहे हैं बाबा आनंद सिंह जी, यहाँ बैठे अंतर्जामी है कि पिता का दर्जा दे दिया है कि मापे को मापे नहीं होते, इसीलिए बुलाना पड़े, नहीं तो तुम्हारी शक्ल ना देखूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कि अगर यही तो सच्चा प्रेम है। एक बार सारे प्रेम धोखा दे सकते हैं, शिष्य और गुरु का नहीं। शिष्य एक बार गुरु को छोड़ देगा, गुरु शिष्य को नहीं छोड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैंने सच में देखा है, महापुरुषों के साथ रहा हूँ ना, कई बार शिष्य इतनी बेद भी बड़ी करके भी उन्हें वो निकाल देते थे। बहुत बड़ी गलती कोई करते तो निकाल देते थे, चले जाए यहाँ से। अब 2-3 साल बीते, 4 साल बीते, खुद उसके घर में जाते हैं उसको बुलाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उनके मन में कोई अहंकार नहीं है, विनम्रता। उनका मन वही है, जुड़ा होता है शिष्य से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिष्य चाहे छोड़ दे, गुरु छोड़ ही नहीं सकता, उसके स्वभाव में ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए एक बार अपनी बाँह गुरु नानक को पकड़ा दो। बाँ है नित्यनेम, बच्चों को नित्यनेम से जोड़ दो। एक बार जोड़ दो, माँ का फर्ज पूरा हो गया। बड़ा होकर कुछ संगत में चला भी गया, वो बिगड़ भी गया, गुरु फिर से उसकी बाँह पकड़ लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपना फर्ज आप निभा दो, बच्चों को नाम से, अमृत वेले से, नित्यनेम से जोड़ दो, आप मुकले हो गए। फिर आप पे उंगली नहीं उठे कि आपने अपनी तरफ से नहीं किया। बड़ा होकर बच्चा बिगड़ गया, ये उसके कर्म, पर फिर भी गुरु उसके लाज रख लेगा, बाँह पकड़ लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार बाँह पकड़ा तो दो, एक बार। आइए ये कविता भी ले लेते हैं। गुरु नानक मेरी बाँह ना छड़ी, अपने ता छड़ गए तू ना छड़ी।
अपने छड़ गए, अपने छड़ गए, अपने छड़ गए, अपने छड़ गए, टोला छड़े पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूरन होए चित्त के इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब है तुम कावो। आप हाथ दे मोए बचाओ। सुखी बसे मोरो परवारा। सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए। सब बैरन को आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा। और भजन के रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याओ। जो पर जाओ सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारिए। सुन सत्र हमारे मारिए। आप हाथ दे मुझे उभरिए। मरण काल का त्रास नुवरिए। हो जो सदा हमारे पछा। श्रेयस तुझ जो करियो रक्षा। राख लियो मोय राखण हारे। साहिब संत साहिब प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता। हो पुरी ततर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा। काल पाए शिव जो अवतारा। काल पाए कर विष्णु प्रगासा। सगल काल का किया तमाशा। जवन काल जो की शिव कियो। वेद राज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोक सवारा। नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो। देव दैत जक्षण उपजायो। आद अंत के अवतारा। सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी। सगल प्रजा जिने आप सवारे। सेवकन को शिव गुण सुख दियो। सकरन को पल मोहब्बत कियो। कट कट के अंतर की जानत। भले बुरे की पीर पछानत। चेटी ते कुंजर अस्तोला। सब पर कृपा दृष्ट कर भोला। संतन दुख पाए ते दुखी। सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान। कट कट के पट पट की जान। जब उद कर्क करा कर तारा। प्रजा तर्क तब दे अपारा। जब वह कर्क करत हूँ कब हो। मैं मिलत दे तर सब। जेते बदन श्रेष्ठ सब धार। आप आपने मोजे उतार। तुम सब ही ते रहत निरालम। भेद भेद अरे आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब। आद अनिल अनाद असंभव। तांका मूढ़ उचारत भेदा। को पेव न पापद भेदा। तांको कर पान अनुमान। महामूढ़ कछ भेद न जान। महादेव को कहतु सदा शिव। निरंकार का चीनत न पेव। आप अपनी बुध है जेती। पिन पिन तो तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा। कुछ सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा। रंग पयोराव कई कोपा। अंडज जेरज से तज कीनी। कुछ खान बहो रच देने। कहूँ फूल राजा हव बैठा। समट प्यो संतरे बैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव। आद जुगाद स्वरूप से अम्बव। अब रक्षा मेरी तुम करो। सिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता। सगल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरणी पर। के दुष्ट दुखत हव मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे। इनके तुम संकट सब टारे।
जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट ने है और अच्छा होई ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला कृपा दृष्टि जाय निहारो ताके तापत नगमो हरो और तो सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छाछ सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पास ते ताए उमारा जिन नर नाम तिहारो कहा दुष्ट लोक ते रहा खड़ग केत में शरण तिहारी आपो हाथ दे ले उबारी सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट लोक ते ले बचाए खड़ग केत में शरण तिहारी आपो हाथ दे ले उबारी सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट दुख ते ले राम कली महला तीजा आनंद क्योंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज से मन वजिया वाधाया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आइया आनंद होवा सतगुरु मैं पाया मन मेरा तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना नागरा समरस स्वामी सुख मनो विसारे करे नानक मन मेरे सदा रो साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिसने सो पावे तेरी नाम मन सावे नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द मेरे कहे नानक सच्चे सैव क्या नहीं घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया करसान सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पूजाइया साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा वाजे पंज शब्द घर सबागे सबद वाजे कला जित कर तारियां पंज दूत वस कीते काल कंटक मारिया पाया तू जिनको से नाम रटे लागे कहे नानक दस को आदित करे नरवाजे अनंत सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे संताप उतरे सुनी सच्ची बानी संत साधन पाए सबसे पूरे गुटे जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रे पर पूरे बिनवंद नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सलो पवन गुरु पानी पिता माता तक मात जिसरात गाई गाया खेले सब जगत चंगियां बुरियां वाजे धर्म हजूर करमी आपो अपने जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
नाम ध्याया, जिन्नी नाम ध्याया, जिन्नी नाम ध्याया, जिन्नी नाम ध्याया, जिन्नी नाम ध्याया, गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले, खेती छोटे नाल। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शुकराना शुकराना मेरे गुरु जी दा लख लख शुकराना, शुकराना शुकराना मेरे गुरु जी दा लख लख शुकराना। नहीं जाना नहीं जाना तेरा दर छड़ के मैं नहीं जाना, नहीं जाना नहीं जाना तेरा दर छड़ के मैं नहीं जाना। हर दुख तो मैनू आप बचाया, हर सुख मेरी झोली पाया, हर दुख तो मैनू आप बचाया, हर सुख मेरी झोली पाया। मेरे गुरु जी भव तो कीता पार करा मैं शुकराना, शुकराना शुकराना मेरे गुरु जी दा लख लख शुकराना। तेरा मैं कर दी जावा, भव सागर तो तर दी जावा, जाप तेरा मैं कर दी जावा, भव सागर तो तर दी जावा। मेरे गुरु जी तू है अपरंपार करा मैं शुकराना, शुकराना शुकराना मेरे गुरु जी दा लख लख शुकराना। उतराया चढ़ाया ने, उतराया चढ़ाया ने, तू हथ साडा ना छोड़ी, पावे लख बुराइया ने, तू हथ साडा ना छोड़ी, पावे लख बुराइया ने। गल दसा आप बीती गल दसा आप बीती घर साडे आके गुरु जी तुसा कृपा कीती, घर साडे आके गुरु जी तुसा कृपा कीती। चरना नाल लाके गुरु जी तुसा कृपा कीती, घर साडे आके गुरु जी तुसा कृपा कीती। शुकराना शुकराना तेरा शुकराना, शुकराना शुकराना तेरा शुकराना, शुकराना शुकराना तेरा शुकराना, शुकराना शुकराना तेरा शुकराना। जय गुरु जी की।
अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय।
गुरु जी सदा जय गुरु जी की।